Parents, teachers, and all my dear students, on the occasion of National Sports Day, I extend my heartiest greetings to all of you. In the situation of COVID-19, the Kendriya Vidyalaya Sangathan gave an opportunity for all of us to celebrate National Sports Day in online process. First of all, we should thank Kendriya Vidyalaya Sangathan for uniting all the peoples from different parts of the country in the name of the National Sports Day. That is today, 29th August 2020. As a principal of Kendriya Vidyalaya Rajangaon, I got an opportunity to speak about the topic importance of sports and games in students' life. Active participation in sports and games can have many benefits in students' life. It gives a student a chance to enhance physical and social skills. It offers a child change from the monotony of daily routine and also keeps stress, anxiety away. Basis on this topic, we can raise some questions here. What is the importance of sports in students' life? What is the importance of student life? What is the importance of sports and games in our daily life? What is the importance of sports? Then what are the advantages of sports? Based on these 5 questions, I will elaborate my lecture. The first question comes here. What is the importance of sports in students' life? It increases mental alertness, self-esteem and confidence of the students, which is an essential part of curriculum. In a nutshell, student must participate in sports activities to devise a vigorous and healthy life. My second question goes like this. What is the importance of student's life? It is said that student life is a golden life because student life is the most important part of human life. It is the period of pure joy and happiness because the mind of a student is free from cares and worries of a grown-up life. In this period, the character of a man is built. Then we can move on to what is the importance of sports and games in our daily life. A person who regularly plays sports develops a healthy body, develops better body strength and better coordination. The physical benefits also include maintaining a healthy weight, preventing chronic diseases and learning the skills necessary to maintain healthy lifestyle. So in the corona arena, which is the present situation in all over the world, so we can prevent even corona by playing a various type of games. So we can keep our body healthy and fit. Then we can move to the question, what is the importance of sports? It helps children to develop mental and physical toughness. Sports shapes their body and make it strong and active. Children should actively participate in sports to avoid being tired and lethargy. This is because sports improve their blood circulation and their physical well-being. Then now the question arises, what are the advantages of sports? There are 10 benefits of sports. If you are playing, there are 10 benefits. Better sleep. Fast Company suggests that exercise and sport triggers chemicals in the brain and make you feel happier and relaxed. The benefits are a strong heart, new connections, improved lung function, increased confidence,
reduces stress, improve mental health. Sport builds leaders also. So like this we can raise many questions. What is the role of discipline in students' life? What is the role of sports in society? Is the discipline important in our life? Why is the discipline important for success? So discipline and sports, these both are inseparable. So normally the sports cultivate discipline amongst the students. Sports cultivates discipline among the society. The sports person will think twice to commit any kind of mistake, because right from the games, right from the practice, right from his life, he learns discipline first, then only he is allowed to play in the varieties of games. So what are the three types of discipline? You see, through teachers usually develop their own styles of discipline for their classrooms. Most discipline strategies can be categorized into three main styles or approaches: preventive discipline, supportive discipline, and corrective discipline. Then how do sports affect people? Now you see, the whole world is thinking about how to survive in the society, how to survive in the world. Now the world is playing a safe game of how to escape from this disease. First of all are playing the survival game now. That is why we are using sanitizer, we are keeping social distancing, we are avoiding to go to the public places. Okay, so that is why now these circumstances, sports is playing a vital role. Okay, so in this way, how do sports affect the people? How do sports help the people? Now clearly, sports can help you reach your fitness goals and maintain a healthy weight. However, they also encourage healthy decision making, such as not smoking and not drinking, etc. Sports also have hidden health benefits, such as lowering the chance of osteoporosis or breast cancer later in life, etc. Then, so this topic is a vast topic. If we extend, it takes lot of time. So finally, I am concluding my speech with narrating a small importance of sports and games in education. Education not only means what is taught in classroom, is a process of learning, and lessons can be learned from all aspects of life. Enlightenment of mind is the purpose of total education. Building of a personality and the character of a young boy or girl is what is intended by education. A classroom education enlightens the mind with a new thoughts and fresh perceptions, given in the books and explained and elucidated by the teacher. But games and sports are not important for success in study, but it is important for success in every walks of our life. Games and sports include all outdoor and indoor games and also athletics. In ancient Greece, they formed the principal part of education. Even today, they are a regular feature of school education and college curriculum. Hence, the school and colleges and sports are annual affairs. Sometimes inter-class tournaments also to be conducted. So, these are all the few views, few tips we can say, few witness how your sports is playing a vital role in students' life, even the society's life, and even the parents, as a teacher, everyone, they have to play some game, they have to engage with some games, so they can be fit throughout their life. Jai Hind, Jai Bharat. मैं सुरेंद्र गिल केंद्रीय विद्यालय राजनांदगांव में शारीरिक शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। मैं अपनी ओर से
अपने विद्यालय के परिवार की ओर से आप सबको राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर बधाई देता हूँ। आज 29 अगस्त को पूरा देश राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मना रहा है, क्योंकि आज ही के दिन एक महान खिलाड़ी का जन्म हुआ था। 29 अगस्त सन 1905 को जन्मे मेजर ध्यानचंद सिंह का नाम पूरे देश में रोशन है। उन्होंने अपने करियर में बहुत खेला है और देश का नाम रोशन किया है। वे बचपन में पेड़ की लकड़ी को हॉकी की स्टिक बनाकर और कपड़े से लपेटकर बॉल को बनाकर खेला करते थे। एक दिन 14 साल की उम्र में वे अपने पिताजी के साथ मैच देखने गए। उस मैच में एक टीम 2 गोल से हार रही थी। तब ध्यानचंद सिंह ने अपने पिताजी से कहा कि मैं हारने वाली टीम से खेलना चाहता हूँ। उनके पिताजी ने उन्हें खेलने की इजाज़त दी और ध्यानचंद सिंह ने उस मैच में 4 गोल किए। इस प्रदर्शन को देखकर आर्मी ऑफिसर बहुत खुश हुए। उन्होंने ध्यानचंद सिंह को आर्मी में भर्ती होने का न्योता दिया। 1922 में 16 साल की उम्र में ध्यानचंद जी ने पंजाब रेजिमेंट में एक सिपाही के रूप में अपने पद को ग्रहण किया और वहीं से उन्होंने अपने हॉकी का खेलना शुरू किया। पंकज गुप्ता ध्यानचंद सिंह के पहले कोच रहे हैं। उन्होंने ध्यानचंद सिंह को खेलते हुए देखा और कहा, यह व्यक्ति पूरे देश का नाम रोशन करेगा। क्योंकि ध्यानचंद सिंह चांद की रोशनी में प्रैक्टिस किया करते थे, तभी से उनके साथियों ने उनके नाम के आगे चंद लगा दिया और वहीं से उन्हें ध्यानचंद सिंह के नाम से जाने लगा। एक मुकाबले में ध्यानचंद सिंह जी जब गोल कर रहे थे तो गोल नहीं हो पा रहा था। तब उन्होंने मैच रेफरी से शिकायत की और गोल पोस्ट के आकार को नापने के लिए कहा गया। उस समय उस गोल पोस्ट की चौड़ाई अंतर्राष्ट्रीय के मापदंडों से कम थी। उसे ठीक किया गया और उसके बाद उस मैच में ध्यानचंद सिंह ने गोल करना प्रारंभ किया। यह देखकर सभी लोग चकित रह गए। ध्यानचंद सिंह का गोल करने का अंदाज सबसे अलग था। ध्यानचंद सिंह 1925 में पहला नेशनल हॉकी टूर्नामेंट खेले थे। इस टूर्नामेंट में उनकी परफॉर्मेंस, उनका प्रदर्शन को देखकर उनका सिलेक्शन भारत के इंटरनेशनल हॉकी टीम में हुआ। मेजर ध्यानचंद को तेजी से गोल करने और 3 बार ओलंपिक
गोल्ड मेडल लाने के लिए जाना जाता है। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि वो नीदरलैंड में एक मैच के दौरान उनकी हॉकी स्टिक तोड़ी गई। जो विरोधी टीम थी उन्हें शक था कि उनके हॉकी में चुंबक लगा हुआ है, क्योंकि जब ध्यानचंद सिंह खेलते थे तो बॉल दिखाई नहीं देता था। तो विरोधी टीम का कहना था कि बॉल वो अपने हॉकी स्टिक में चिपका कर ले जाते हैं, लेकिन विरोधी टीम यह नहीं जानती थी कि जादू उनके हाथों में है। इसलिए मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। 1926 में न्यूजीलैंड में होने वाले एक टूर्नामेंट के लिए ध्यानचंद सिंह का चुनाव हुआ। यहाँ एक मैच के दौरान भारतीय टीम ने 20 गोल किए थे, जिसमें 10 तो ध्यानचंद सिंह ने किए। इस टूर्नामेंट में भारत ने 21 मैच खेले थे, जिसमें से 18 में भारत विजयी रहा, एक में हार का सामना करना पड़ा। मेजर ध्यानचंद सिंह जब गोल करते थे तो उनका कहते थे कि जब भी वो हिट करते थे तो डायरेक्ट गोल पोस्ट में जाना तय था। मेजर ध्यानचंद सिंह तो वैसे अपने करियर में काफ़ी समय खेले हैं और उनके किस्से हर कोई सुना करते थे। उनके किस्से सुनने के काबिल भी हैं। उन्होंने अपना अंतिम जो मैच है सन 1948 में खेला, क्योंकि 42 वर्ष की आयु में हॉकी खेलने के बाद उन्होंने संन्यास ले लिया और उसके बाद उन्हें एक लंबी बीमारी से जूझना पड़ा और इस तरह से वर्ष 1979 में मेजर ध्यानचंद जी का देहांत हो गया और सन 1979 के बाद देश ने एक महान व्यक्ति को, एक ऐसे व्यक्ति को जिसे हॉकी का जादूगर कहा जाता है, उसे खो दिया। इसीलिए हर वर्ष 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर पूरा देश राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है और हर कोई खिलाड़ी अपनी प्रतिभा को ध्यानचंद सिंह के जैसे निखारने के लिए कोशिश करता है। ऐसे खिलाड़ी बार बार नहीं मिलते हैं और ऐसे खिलाड़ी को कोटि कोटि प्रणाम। मैं अंत में एक बार फिर आप सबको राष्ट्रीय खेल दिवस पर
नमस्कार। हार्दिक आप बधाई सभी देता हूं। देशवासियों को धन्यवाद। केंद्रीय विद्यालय परिवार के द्वारा आप राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में हम सभी जानते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस हॉकी के महान जादूगर मेजर ध्यानचंद की जन्म दिवस 29 अगस्त के दिन मनाया जाता है। इसी दिन खेलों से संबंधित जितने भी पुरस्कार हैं उनका जो है राष्ट्रपति भवन में उन पुरस्कारों को विजेता खिलाड़ियों, चयनित खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाता है। उन्हीं के ऊपर ये राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, जिनकी आपको ढेर सारी बधाइयाँ। अब मैं केंद्रीय विद्यालय के बारे में बात करना चाहूँगा। केंद्रीय विद्यालय देश के शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी संस्थान है, जिनमें अब हम हर साल देखते हैं कि कक्षा 10वीं या 12वीं जो बोर्ड क्लासेस है उसमें हमारा रिजल्ट देश में लगातार कई वर्षों से हम लगभग 100% रिजल्ट दे पा रहे हैं। उसका कारण है कि हम समान और समावेशी शिक्षा पर जोर देते हैं और उसी के द्वारा ही शिक्षण जो है कार्यक्रम हमारे स्कूल में चलाया जाता है। लेकिन आपको केंद्रीय विद्यालय के बारे में एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमारी संस्था जो है हम सिर्फ शिक्षण पर ही काम नहीं करते हैं, हम संस्कृति, संस्कार, स्वास्थ्य पर भी काम करते हैं। आप केंद्रीय विद्यालय के जैसे प्रवेश करते हैं, आप कैंपस में देखेंगे आपको संस्कृति और संस्कार आपको सामने ही दिखाई देगा। उसी प्रकार स्वास्थ्य के लिए हमने SBSB कार्यक्रम लेके आए हैं। ये SBSB कार्यक्रम क्या है, इसका फुल फॉर्म पहले मैं बता दूं आपको। स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत। भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। विश्व में सबसे ज़्यादा युवा है वो भारतवर्ष में है। जनसंख्या में तो चीन आगे है, लेकिन हम जो है सबसे ज़्यादा युवा के मामले में नंबर 1 पे है। युवा कोई भी देश के विकास के लिए प्रथम सीढ़ी है और युवा का फिट रहना उससे भी ज़्यादा जरूरी चीज़ है। युवा रहने से ही काम नहीं चलेगा, युवा होने से भी काम नहीं चलेगा, युवाओं को फिट भी होना जरूरी है। तो बच्चे जब छोटे हैं उससे ही युवा बनेंगे। तो उसका जो नींव है स्कूल में ही हमने जो है फिटनेस कार्यक्रम चला रखा है, जिसका नाम है SBSB। हम विशेष तरीके से ट्रेनिंग बच्चों को देते हैं, जिससे वो अपनी फिटनेस को और बेहतर कर पाते हैं। फिर उसका हम टेस्ट लेते हैं। जैसे आपका शिक्षण कार्यक्रम होता है, उसका टेस्ट होता है, परीक्षा होता है, उसमें आपको ग्रेड शीट मिलता है या मार्कशीट मिलता है, जिससे बच्चों के जो सीखा है बच्चा वो आपको पता चल पाता है कि किस लेवल पे है बच्चा। वैसे ही हम जो है SBSB के माध्यम से एक हेल्थ कार्ड आपको प्रोवाइड कराते हैं सारे बच्चों को, जिसमें बच्चे का हेल्थ के बारे में पता चलता है कि बच्चे की हेल्थ की कौन सी कंडीशन है, हेल्थ पे वो किस लेवल पे है, क्या उस बच्चे के हेल्थ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है या बच्चा फिट है, उसका फिटनेस लेवल पता चलता है। SBSB कार्यक्रम हम हर साल प्रतिदिन अपने स्कूल में करते हैं। उसमें एक्टिविटीज़ होता है जैसे स्पीड, स्ट्रेंथ, पावर, कोऑर्डिनेशन, BMI, बैलेंस में हम देखते हैं BMI में हम देखते हैं कि आपका जो वेट है वो हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ज़्यादातर हम देखते हैं एक उदाहरण के रूप में कि एक अगर कोई है बच्चा या कोई आदमी है ना, उसकी अगर हाइट 5 फीट 6 इंच हो, मतलब 5.5 फीट जिसको हम बोलते हैं, उसका वेट लगभग 70 से 75 मतलब 70 to 75 kg के आसपास होना चाहिए। तो वो एक फिट, उसका वेट जो है सही कहलाएगा, फिट कहलाएगा। वैसे ही है बैलेंस हमारी लाइफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। बैलेंस से ही हम लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं। बैलेंस अब हमारे देश के महापुरुषों ने भी कहा है, हमें हमेशा मध्यम मार्ग पे अपनाना चाहिए सक्सेस के लिए। तो मध्यम मार्ग मीन्स बैलेंस से है। बैलेंस आपका बराबर होना चाहिए, बैलेंस
भी SBSB में चेक किया जाता है। तो इन सारी एक्टिविटीज़ के द्वारा हम देख पाते हैं कि बच्चों का जो है फिटनेस लेवल किस लेवल पे है। बच्चा फिट होना बहुत ज़रूरी है, किसी भी चीज़ के लिए आपको फिटनेस ज़रूरी है। तो ये बच्चे करने से पहले सारे टीचर्स भी इस चीज़ को करते हैं, तभी वो बच्चे को करा। प्रकार हम देखते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संस्थान के सारे टीचर्स बच्चों के साथ साथ टीचर्स भी अपना फिटनेस टेस्ट कर पाते हैं और एक्टिविटीज़ कर पाते हैं, और तभी बच्चों को वो बहुत अच्छे से करा पाते हैं। इस प्रकार से बच्चा जो है हमारे यहाँ फिटनेस के जो लेवल हैं वो लेवल हमारी ट्रेनिंग के द्वारा, SBSB की ट्रेनिंग के द्वारा वो लेवल प्राप्त कर पाता है। बच्चा फिट रहता है। जब वो बच्चा फिट रहेगा तभी जो है वो अपना एजुकेशन पे भी ध्यान दे पाएगा। अगर किसी की तबीयत खराब है तो वो उसका एजुकेशन जो है वो प्रभावित होता ही है। तो इसलिए बच्चे को अच्छे एजुकेशन के लिए हम उसके फिटनेस पर भी काम कर रहे हैं। पूरा केंद्रीय विद्यालय परिवार इस फिटनेस की ट्रेनिंग को बच्चों के साथ साथ टीचर्स भी हम ये ट्रेनिंग्स करते हैं और बच्चों में भी अप्लाई करते हैं। इसलिए सभी देशवासियों से भी निवेदन है कि आप भी सुबह शाम कोई सा भी जो आपका लगे कि ये फिटनेस वर्क हम करें जिससे हम फिट हो सकते हैं, ज़रूर करें। कम से कम रनिंग, वॉकिंग या और कुछ एक्सरसाइज आप करना चाहें। खासकर गेम्स जो है आप गेम्स में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। आपके घर के आसपास भी खेल सकते हैं, लेकिन कुछ भी शाम आप ज़रूर जो है गेम्स में पार्टिसिपेट करें और जो है अपने आप को फिट रखें। आपसे ही देश है, आप फिट हैं तो देश फिट है। इसलिए आपको एक बार फिर से राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मैं केंद्रीय विद्यालय परिवार की तरफ से आप सभी को देना चाहता हूं। आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। धन्यवाद। जय हिंद। मैं KV राजनांदगांव से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 29th अगस्त ऑन द एनिवर्सरी ऑफ मेजर ध्यानचंद। तो आज हम बात करेंगे फिटनेस एंड वेलनेस थ्रू स्पोर्ट्स। फिटनेस आज हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हम फिट रहेंगे तो हम सारी एक्टिविटीज़ बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो हमें फ़िट रहने के लिए क्या करना होगा? रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी होंगी और हेल्दी डाइट फॉलो करना होगा। जंक फूड से हमें दूर रहना होगा और किसी एक स्पोर्ट्स आउटडोर एक्टिविटी को अडॉप्ट करना होगा। इससे क्या होगा कि अगर हम आउटडोर एक्टिविटीज़ करते हैं तो हमारी बॉडी जो है उसके हर एक पार्ट का मूवमेंट होगा, जिससे हमारी बॉडी में ब्लड बहुत अच्छे से सर्कुलेट होगा। ब्लड सर्कुलेशन तो वैसे ही हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और अगर वो स्मूथली फ्लो कर रहा है तो हम एकदम हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे। और जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है वो आप क्या क्या चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्विमिंग है, बास्केटबॉल है, बैडमिंटन है, इससे बहुत स्किपिंग है, इससे बहुत जल्दी हमारी जो बॉडी है उसमें ब्लड सर्कुलेट होता है। तो ये सब हमें फॉलो करना चाहिए, अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाना चाहिए। इससे जो लोग दुबले होना चाहते हैं उनका वेट कम होगा। तो इसे हमें रेगुलरली करना है, ये नहीं कि हमको करके छोड़ देना है। इससे हमारा वेट मेंटेन रहेगा हमेशा और हमारी बॉडी जो है वो एनर्जेटिक रहेगी, एक्टिव रहेगी। किसी भी टास्क को करने के लिए हम हमेशा एक्टिव रहेंगे। इससे क्या होता है कि हम मेंटली स्ट्रांग बनते हैं, फिज़िकली स्ट्रांग बनते हैं। तो ये हो गई फिटनेस की बात। फिटनेस के साथ साथ हमारे लिए वेलनेस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वेलनेस में हम क्या चीज़ें देखते हैं कि जो हमारे इमोशंस हैं, साइकोलॉजिकल हमारे थॉट्स हैं, जो सोशल चीज़ें, स्पिरिचुअल जो थॉट्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो वेलनेस के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें ये है कि ये एक दूसरे को बैलेंस बना के रखती हैं। ये एक दूसरे अगर अनबैलेंस्ड हो जाएंगे तो हमारी बॉडी फिर फिट नहीं रहेगी। तो ये एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, जिससे हमारे सेंसेस काम करते हैं। अगर ये बैलेंस में है तो हमारे सेंसेस बहुत अच्छे से काम करेंगे।
तो हमें किन चीज़ों पे ध्यान देना होता है? हमारी डाइट पे, हमारी एक्सरसाइजेस जो हम करते हैं डेली लाइफ में, स्पोर्ट एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करना, ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी को फिट रखेंगी। प्रॉपर नींद हमें लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमें फिट बनाने के लिए। तो आप सभी स्पोर्ट एक्टिविटीज़ करते रहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, अच्छा पानी पीजिए, जिससे आपकी इम्यूनिटी भी डेवलप होगी। और आज के टाइम में इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो हमें बीमारियों से दूर रखता है। अगर हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है तो हम बीमारियों से लड़ सकते हैं। इसलिए हमें फिट रहने के लिए कोई गेम खेलना चाहिए, आउटडोर एक्टिविटीज़, हेल्दी डाइट, प्रॉपर नींद, ये सारी चीज़ें हमें फॉलो करना है और अपने डेली रूटीन में इसको इन्वॉल्व करना है। तो फिर हम स्वस्थ रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम 29 अगस्त 2020 को अपना खेल दिवस मना रहे हैं और इस खेल दिवस के अवसर पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमें पढ़ाई के साथ साथ खेल पर भी उतना ही ध्यान देना है। और खेल का अर्थ ये नहीं है कि हम केवल ग्राउंड पर जा रहे हैं और वॉलीबॉल या कबड्डी या बैडमिंटन खेल रहे हैं। हमें अपने शरीर को फिट करने के लिए खेल के साथ हम यदि किसी तरह की रोज़ एक्सरसाइज करते हैं या योगा करते हैं, वह भी खेल का ही एक हिस्सा है, या वह भी हमारे शरीर को चुस्त और तंदुरुस्त रखने का एक भाग है। हम हेल्दी रहेंगे, हमारा शरीर रोग रहित रहेगा, तो हम पढ़ाई पर भी उतना ही ध्यान दे पाएंगे और अन्य गतिविधियों में भी हम उस प्रकार अपना योगदान दे पाएंगे। अगर हम सुबह उठते हैं तो हम कोशिश करें कि कम से कम 5 मिनट योगा के लिए ज़रूर दें। यदि योगा आप करते हैं तो आपको मानसिक रूप से स्थिरता मिलेगी। आप 5 मिनट मौन धारण करके विचार भी करें, आपको अच्छे विचार आएंगे, एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा आपके शरीर में और इस तरह से आपके दिन की बहुत अच्छी शुरुआत होगी। फिर आप जो भी आपका डेली रूटीन वर्क है उसको कीजिए और इसको करने के बाद आप दिन में थोड़ा समय और निकालिए या शाम को समय निकाल सकते हैं, लेकिन आप रूटीन बनाइए। दैनिक जीवन में इस चीज़ को लाइए कि आप कम से कम 1 से 2 किलोमीटर मिनिमम बता रहा हूँ कि आप पैदल चलें। पैदल चलने से आपके पूरे शरीर में रक्त का संचार होता है, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। आप योगा करेंगे, आप पैदल चलेंगे, रस्सी कूद सकते हैं तो रस्सी भी कूदेंगे, तो आपके जो हेल्थ है, वर्किंग स्टाइल है, नेचर है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपका साथ जो है अन्य चीज़ों के साथ कोऑर्डिनेशन होगा। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आज स्पोर्ट डे के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए केवल खेल और दैनिक खेल के संबंधित गतिविधियों के अलावा खान पान के रूप में भी बहुत ज़रूरी है। आपका खान पान आपके शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत मददगार होता है। आप जो भी कुछ खा रहे हैं या जो भी कुछ आप भोजन में प्राप्त कर रहे हैं उसके बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि उसमें कितने मिनरल्स हैं, प्रोटीन है, विटामिन है, कितना हेल्दी फूड है। जंक फूड की तरफ ना दौड़कर आप हेल्दी फूड की तरफ जाइए। से नो टू जंक फूड। आप स्प्राउट्स खा सकते हैं, आप घर में बने हुए अच्छे भोजन को, दाल, चावल, सब्जी, प्रोटीन से भरी हुई खाद्य पदार्थ की मात्रा जिसमें बैलेंस डाइट हो उसको लीजिए। और आप किस तरह से वेलनेस अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और किस तरीके से अपने शरीर को योगा के, स्पोर्ट्स के माध्यम से आप अपने शरीर को अच्छा रख सकते हैं। शरीर को अच्छा रखने के बाद आप जब पढ़ाई करते हैं तो भी कई बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, कई बच्चे बहुत अधिक समय तक पढ़ते हैं। जिस तरह से खाने के लिए बैलेंस डाइट जरूरी है, हर तत्व की मात्रा आपके शरीर में आवश्यक है, उसी प्रकार आपको जब पढ़ाई करते हैं तो भी आपको एक निश्चित समय तक पढ़कर थोड़ा शरीर को रेस्ट भी देना है। लगातार 4 या 5 घंटे ना पढ़कर आप अगर 1-1 घंटे की पढ़ाई करते हैं 2-3 पार्ट्स में और बीच में 5 या 10 मिनट को विराम देते हैं तो आप लंबे समय तक अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे और जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आपके दिमाग में अच्छे से रहेगा और आपको याद भी रहेगा। तो
स्पोर्ट्स डे में मेजर ध्यानचंद जी को हम याद करते हैं, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि बॉल उनकी हॉकी के हिसाब से ही चलती थी। आप अपना एक फेवरेट खेल सभी का होता है, चाहे वो बैडमिंटन हो, हॉकी हो, वॉलीबॉल हो, बास्केटबॉल हो, दौड़ हो, रिले रेस हो। आप किसी ना किसी एक खेल को निश्चित रूप से अपनाएं और उस खेल की तरफ दें। अब कई बच्चे बोलते हैं कि सर खेल तो 2 तरह के हैं, इंडोर गेम्स भी खेल रहे हैं। तो इंडोर जो गेम्स हैं वो आपकी शारीरिक गतिविधियों पर कम और मानसिक गतिविधियों पर ज़्यादा कार्य करते हैं। आपको इंडोर के अलावा आउटडोर गेम्स में भी रुचि अपनी जगाना चाहिए। प्रातः जल्दी उठें और शाम को भी आप जल्दी सोएं। इस तरह से यदि आपने अपनी दिनचर्या को नियमित रूप से, संचालित रूप से बनाया हुआ है, तो आप कभी भी रोग से ग्रस्त नहीं होंगे, हमेशा निरोग रहेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ मेजर ध्यानचंद जी को याद करते हुए इस वर्ष के खेल दिवस के रूप में जो मनाया जा रहा है, केंद्रीय विद्यालय राजनांदगांव परिवार की तरफ से मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं, हमारे शिक्षक साथियों को शुभकामनाएं देता हूं, हमारे प्राचार्य महोदय का आभार ग्रहण करता हूं और हमारे उच्च अधिकारियों को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं और सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं मनीष कुमार गुप्ता, केंद्रीय विद्यालय राजनांदगांव की तरफ से, पीजीटी कंप्यूटर साइंस। धन्यवाद। हौसलों के बल पर, अपने हौसलों के बल पर प्रतिभा अपनी दिखा देंगे, प्रतिभा अपनी दिखा देंगे। इतनी करेंगे हिम्मत, इतनी करेंगे हिम्मत, सूरज खुद ही बना लेंगे, सूरज खुद ही बना लेंगे। मेजर ध्यानचंद, द हॉकी विज़ार्ड, born on 29 August 1905, Allahabad, Uttar Pradesh. The only hockey player who has been awarded Padma Bhushan. In his career, Major Dhyanchand scored over 1,000 goals, and his words were, "It's not the duty of my country to provide me something, but it's my duty to do something for my country." So, you have to dream first to make it come true. This Sports Day, let's salute all the legends who aimed high and achieved it for our country and for themselves. A very good morning to all of you. I'm Anshul Mishra and I'm here to give my feedback on fitness at home. Don't let stressful times put the strain on your fitness. What does fitness mean? Fitness is defined as the state of being physically and mentally fit. And during this pandemic, it's even more important for us to be active for our physical and mental health. And with social distancing, gym closures and lockdown across the major cities, exercising at home will be the last thing on our mind or even seem daunting. Now the question arises, why do we have to exercise regularly? As being a sports person, it's very important for me to do exercise regularly. But it's just not for me, but it's for all of us. Although physical activities benefits our mind and body in different ways. But here, I'm gonna tell you the key ones. First, exercises releases chemical like endorphins and serotonins which better our mood. Second, physical movements can ease tightness of shoulders and necks which often came with anxiety and stress. Third, regular exercises reduces the risk of serious health issues like heart disease, heart stroke and type 2 diabetes. And it also reduces depression. And lastly, but definitely not the least, according to the current situation, it helps our immune system. Now you may ask, how much exercise does we need to do regularly? So in general, goal aim for 30 minutes for physical moderate exercise. And if you want to lose weight or maintain weight loss or meet any specific fitness, you have to work more. The COVID-19 pandemic means you're gonna stay home more and you are sitting more. So for that, I have
regularly. Firstly, I jump for 2 to 3 minutes. Then I do lunges, squats, push-ups and leg swings. And I really enjoy it. But if you don't find it interesting, you can try something more fun. You can dance on music, you can try something online exercises. And on the other hand, you should have a healthy diet, because healthy diet keeps the mind happy and the person happy. So, I would like to end my speech by the quote given by Arnold Palmer. Always make a total effort even if the odds are against you. So, we have to put all our efforts to fight against this pandemic. I hope you all are safe and healthy. Thank you and a very happy sports day. Thank you and have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat.